Yes. So, very good morning, everyone. Still, some of the questions are there in fractional number, wherein some of the students are doing mistakes. So that is why we should discuss once again about the especially miscellaneous exercise, wherein all the types of questions are there. Okay, so through that only we will revise all the topics what we have learned in this chapter, fractional number. Okay, so today we are going to learn about chapter number 8, chapter number 8's miscellaneous exercise. So chapter number 8, ME. So we are going to discuss chapter number 8, ME. The first question which it is asking about, which of the following is not an equivalent fractions? So here some of the fractional number are given and it is asking which of the following are not equivalent fractions. So question number 1 is, which of the following is not an equivalent number? So here some of the equivalent fractions of here it is given 2 by 3. So one fractional number is given and some of the options are given. Among these options which are not equivalent, so here you have to think about it कि जो equivalent नहीं है वो बताना है. तो जैसे कि मान लेते हैं अगर हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए is 4 by 5, option B is 4 by 6, option C is 6 by 9, option D is 8 by 12. So among these, which one is not equivalent fractions of 2 by 3, that you have to tell. So quickly let me see who can answer this question. Out of these all, which one is not an equivalent of the given fractions? जो fractions दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो है equivalent fractions नहीं है, ये आपको बताने हैं. Yes, so yes, very nice. So whoever answer is option number A, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर A है, बहुत बढ़िया. 4 by 5 is not an equivalent of 2 by 3 because 4 by 6 जो है ये 2 by 3 का एक इक्विवेलेंट नंबर है. उसी तरह से 6 by 9 जो है वो भी 2 by 3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है और 8 by 12 जो है वो भी एक 2 by 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है कि उसका इक्विवेलेंट में जो भी फ्रैक्शंस होता है दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 7 8 9 10 as like dot 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 if multiply we will find the equivalent fractions of given number. तो ये सबको समझ में आ गया था. नॉर्मली मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, आई मीन किसी का ज्यादा गलती नहीं हुआ है इसमें. The topics wherein the maximum mistakes you all have done will tell you all. So equivalent fractions is very easy. Just you have to find the equivalent fractions. That's all. Okay. One more process or one more cross multiplication process also we have learned how to check the given fractions are given fractional number are equivalent or not, right? कि अगर मान लो दो नंबर है, एक है 1 by 2 और एक है 5 by 10. आपको चेक करना है कि ये जो दो गिवन नंबर है, गिवन फ्रैक्शनल नंबर है, ये इक्विवेलेंट नंबर है या नहीं है. तो हम लोग ने एक प्रोसेस ये भी पढ़ा था, दैट इज
द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 10 is equal to 10, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 into 5 is also 10। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल हुआ तो देयरफॉर ये जो है 1/2 and 5/10 these are equivalent। तो बहुत ही इजीली इस तरह से जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है वो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी दिया हुआ फ्रैक्शनल नंबर है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये हो गया हमारा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू ऑल आल्सो कि अगर किसी को कुछ डाउट्स है कोई भी क्वेश्चन में फ्रॉम मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है। Okay, so now next type of question which we have is which of the following is greater? If 2 fractional number is given or 3 fractional number is given or 4 or 5 fractional number is given, how we can compare the given fractional numbers among those all fractional numbers, which one is greater or which one is smaller, that we will see now. So suppose here given second questions I am talking about, which of the following is greater? Which of the following is greater? यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज गिवन 7/12, ऑप्शन बी इज गिवन 5/8, ऑप्शन सी इज गिवन 3/4। तो अगर आप लोग इसको सोचते हो कि डायरेक्टली हम बता देंगे क्योंकि इसमें 7 पार्ट है, 7/12 है तो ये बड़ा है, तो कहीं कहीं किसी किसी केस में वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि इसका 7 पार्ट है 12 में से इसका मतलब ये बड़ा है और उसका 3/4 पार्ट है मतलब छोटा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग ने सीखा था कि ये जो भी नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों नंबर्स का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो तीनों नंबर है उसका अगर एलसीएम लोगे 12, 8 एंड 4, सो 12, 8 एंड 4, 2, 6 2 are 12, 4 2 are 2, 2 2 are 4, then again 2, 3 2 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, राइट। इतना ही जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 2 multiply 3 multiply 2, सो हो जाएगा 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, सो 24। सो इसका मतलब हमें जितने भी ये सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर है उसको हमें 24 करना है। तो 24 करने के लिए हमें 12 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करने का, चलिए यहाँ पे अलग से लिखते हैं। सो 7/12, हाउ मच वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 12 सो दैट इट इज 24, सो 2। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 here, we will multiply 2 here also, so 14 divided by 24। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 5/8 जो है, 5/8 को भी हम लोग 8, हाउ मेनी टाइम्स 8 is equal to 24, 3, right? So if you are multiplying 3 here, we will multiply 3 in the numerator also.
So then it will be 3 5 are 15 divided by 3 8 are 24. So ये हो गया 14 divided by 24, ये हो गया 15 divided by 24 and 3 by 4 को भी हम लोग इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे. So 4 how many times 4 is equal to 24? 6. So 6 times. If you are multiplying 6 here, you need to multiply 6 here also. So 3 6 are 18 divided by 4 6 are 24. अभी हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर आया और यहाँ पे जो बोला गया था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर. तो अब देखना है ये तीनों में से ग्रेटर कौन सा है. देखो अगर आप लोग 7/12 करते तो वो गलत हो जाता. क्यों? क्योंकि 7/12 का मतलब होता है अगर आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हो तो 14/24, जबकि 3/4 का मतलब होता है 18/24. तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा जो है 18/24 है. तो 18/24 अगर बड़ा है इसका मतलब 3/4 जो है वो सबसे बड़ा है. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज 3 divided by 4. ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया. यस 3/4 जिसका भी आंसर है सबका आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. So बहुत बढ़िया. So whoever answer is 3/4 is the correct answer. Very simply you can do like this. So directly कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे. जितने भी फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं आइदर उसको अरेंज करने का केस में हो, अगर अरेंज करने के लिए भी बोला जा रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब भी पहले हम लोग इस तरह से एलसीएम निकाल के बनाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव. नेक्स्ट द लोएस्ट फॉर्म. अब लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव, हाउ कैन वी रिड्यूस इनटू द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन नंबर. जो भी एक नंबर दिया हुआ रहता है तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में. एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई यूज्ड टू टेल यू ऑल. यही चीज हम बोलते हैं कि इस तरह से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी है और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत है तो आपको एक्सप्लेन करके आंसर समझाना है, आंसर बताना है, आंसर लिखना है. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख दिए. हाँ, एग्जाम के टाइम में अगर आप रफ वर्क करते हो इट्स गुड, बट यहाँ पे जब भी क्लास वर्क होमवर्क करते हो यू नीड टू एक्सप्लेन लाइक दिस. Okay, so then only you will get the answer. So third type of question which we have in this exercise is how to reduce to the lowest form. So the lowest form of 28 divided by 42 is, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है. अब ऑप्शंस क्या है आप भूल जाओ. वेरी सिंपली आपको सबसे पहले जो नंबर है इसका लोएस्ट फॉर्म निकालना है और जो लोएस्ट फॉर्म है उसको लिख देना है. ठीक है, कभी भी कोई ज्यादा बड़ा नंबर अगर होता है तो उसको लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालना. ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी नंबर का जब हम लोग लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं तो दोनों नंबर को उसका एचसीएफ से डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम नहीं, यहाँ पे एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट नंबर जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो. तो ये जो दोनों नंबर है 28 और 42, पहले इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे. एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग वो एचसीएफ से दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड आप रिमाइंड करोगे जो हम लोग सीखे थे एचसीएफ निकालने के लिए, तो जो भी नंबर्स होता है यहाँ पे 28 और 42 है तो 42 बड़ा है तो 42 को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 28. सो कितना आएगा यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स 28 इज इक्वल टू 42. नहीं होता है तो इससे अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो 1 टाइम में लेते हैं. सो 128 आर 28, 1 टाइम में लेते हैं. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 8 + 2 इज 10, 2 + 2 इज 12, सो 4 एंड 1 14, तो 14 हो गया. अब ये जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे 28 हो जाएगा और फिर हमें इसको डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब कितना टाइम्स में जाएगा ये, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गोज, 2 टाइम्स, राइट. सो 2 टाइम्स 14, 2 आर 28. तो इसका हमारा एचसीएफ क्या निकला, 14. सो एचसीएफ इज इक्वल टू
14 और अगर HCF 14 निकला तो हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है देयरफॉर 28 डिवाइडेड बाय 42 हमारे पास जो है इसको भी 14 से डिवाइड करना है और इसको भी 14 से डिवाइड करना है और जो भी नंबर आएगा वो हमें लिखना है। सो हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे देखा कि 2 टाइम्स 14 इज इक्वल टू 28, तो यहाँ हो जाएगा 2 और आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 14 3 आर 42, राइट, 14 3 आर 42, सो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरह से रफ वर्क हम लोग इधर करेंगे, दिस इज वर्किंग प्लेस, और जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो इधर लिखेंगे। देयरफॉर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 28 by 42 is 2 divided by 3. So 28 by 42 का लोएस्ट फॉर्म हम लोग का हो जाएगा 2 divided by 3. So very easily this is how, yes, very nice, जिसका भी आंसर 2 divided by 3 है वो सही आंसर है। तो इस तरह का कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहता है जिसका हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो HCF निकाल के HCF से दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है और जो भी फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर फ्रैक्शन। Okay, I hope these three questions which we have discussed till now everyone understood, सभी को समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, देन कैसे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, एंड देन हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन नंबर को लोएस्ट टर्म में। ठीक है, यस। Now let's see the next what we have. So this is how you have to do all by explaining. Okay, explain करके अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। So यहाँ पे next question which we have is question number 2. In this question it is asking in each of the following state which fraction is not equivalent to each other. तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है। This question is also based on the equivalent fractions. So you have to tell which one are not equivalent. जो दिया हुआ है वो उसमें से कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है ये आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट है या नहीं है उसके लिए हम लोग ने एक प्रोसेस पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। उसके अलावा हम लोग ने ये भी देखा है कि कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अगर वो सेम नंबर आ जाता है तो वो एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे द नंबर विच इट इज गिवन इज फर्स्ट नंबर विच वी हैव इज 1 divided by 3, next which it is given is 2 divided by 6, then 3 divided by 9, then 8 divided by 12 and 5 divided by 15. So these are the some numbers which given and it is asking is these all are equivalent or not. तो आप देख सकते हो वेरी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके हम लोग का ये आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। सो यहां तक तो है, ये जो है ये यहां तक इसका इक्विवेलेंट हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस 8 by 12, 8 by 12 जो है इसका इक्विवेलेंट है नहीं है, और यहां पे ये जो है ये इक्विवेलेंट है, बट 8 by 12 which it is given is not the equivalent of these all number। ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं 8 by 12 सिर्फ जो है इसका इक्विवेलेंट नंबर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 8 अगर मल्टीप्लाई करते हो, सो 8 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 3 8 आर 24 होना चाहिए था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करते हो 4 2 आर 8, 4 6 आर 24 हो जाता। तो उस तरह से आप देखोगे ये 8 by 12 जो है नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सेकेंड का अगर बात करें, सेकेंड में अगर बात करें हमारा जो नंबर्स है
2/3, 2/3. Okay, so second question which we have is 1/7, 2/14, 3/21, 4/28 and 5/42. 5/42. तो यहां पे इस तरह का नंबर्स दिए हुए हैं और आपको देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। इसको अभी हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। लेट अस ट्राई टू चेक बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर देखोगे तो उससे भी हम लोग को पता चल सकता है। सो 14 1 और 14 और 7 2 और 14, 14 14 इक्वल, इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट है। चलिए इसका देखते हैं। 3 7 आर 21 और 21 1 और 21, ये भी सेम है। तो इसके साथ हम उसका कंपेयर करके देखते हैं। 4 7 आर 28 एंड 1 28 आर 28, ये भी है। अब ये देखते हैं 4 5 7 आर हाउ मच? ये फर्स्ट दिस इज 1 into 42 is 42 and 5 7 आर 35। तो यहां पे आप देखोगे अगर इसका और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हो तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 into 42 is 42 and 7 into 5, so here 1 into 42 is 42 and 7 into 5 is 35। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो जो 5/42 है that number is not equivalent, so 5/42 यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसी तरह से आप जो है वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो भी इक्विवेलेंट, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन कौन सा नहीं है। Yes, 5/42, 8/12 and last one is 10/18, 10/18। Let me see, maybe हो भी सकता है, हाँ 10/18, बिकॉज आप अगर 3 into 10 मल्टीप्लाई करोगे 30 एंड 18 into 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये अलग हो जाएगा, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू 30, एंड दिस इज हाउ 10/18 विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजीली दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Question number 3 is also slightly similar to that. There are several process to do. You have to fill in the boxes, so the statement should be true. So fill in the boxes. So first statement, suppose I am taking, which it is given 3 divided by 4 is equal to dash divided by 12. So here you have to tell what will be in this blank. इसको बनाने के लिए भी हमारा either you can use cross multiplication process also, or you can use that verification process, that how much you should multiply here, so that 12, then that much you have to multiply here also, very simply. So first let's try to do with the help of cross multiplication, that we know 3 into 12 is equal to how much? 3 multiply 12 is equal to how much? 3 1 are 3, 3 2 are 6, 36. So now you have to check with 4 how much we should multiply so that the answer is 36. ये आपको देखना है how many times 4 is equal to 36. How many times? 9. So 9 times 4 is equal to 36, then here it will be 9. तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि you have to check that how much we should multiply here, that so that the answer will be 12. तो यहाँ पे हमें कितना मल्टीप्लाई करना है ना, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पे 3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, राइट। सो 3 4 आर
12। तो अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 3 आर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 3/4 है, 4 के साथ हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9 हो जाएगा, 3 4 आर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। सो टू प्रोसेस which I have told, either use this process or use this process, whatever the process you find easy, you can do with the help of that. So this is how very easily you can fill the boxes of this all questions. So now next of all we will discuss in our next class. Thank you. Bye bye everyone. And your homework will be to do miscellaneous exercise questions only. So at least 5 miscellaneous exercise you have to do. So note down the homework also. 5 ME questions from ME.